गुजरात बॉलीवुड सब मिलेगा zoomtv.in। No ego in saying it that we got really worried. We saw the first promo, it's outstanding. Salman is amazing. The 2 songs rock. So there's no ego in saying we got scared and ran away. लीजिए मिलिए चुलबुल पांडे के नए शिकार से। करण जौहर दबंग से इस कदर डर गए हैं कि उन्होंने सलमान खान की इस होम प्रोडक्शन फिल्म के दबंग के सामने घुटने टेक दिए हैं और कर लिया है वी आर फैमिली को प्रीपोन। किसने कहा? They are dabang. And they have no other way of feeling it or saying it. They should say they are dabang. Just the way my name is Karan. They are dabang. भाई मान गए करण को। Zoom के एडिटर इन चीफ उमर कुरैशी के शो एनकाउंटर में अपने इस ऑनेस्ट कन्फेशन से करण ने भी खुद को दबंग साबित कर दिया है, क्योंकि ऐसा सच तो कोई दबंग ही बोल सकता है जैसा करण जौहर बोल रहे हैं। We got scared. Yeah, that's true. I got very worried. Dabang, we were coming, we thought that release period could absorb 2 films, discussed with UTV, and there's no ego in saying it that we got really worried. We saw the first promo, it's outstanding. Salman is amazing. The 2 songs rock. It's going to get it's going to monopolize that weekend entirely. And I didn't want my family to not get any love. So there's no ego in saying we got scared and ran away. करण जौहर का जौहर पूरा बॉलीवुड मानता है, पर अब खुद करण ने मान लिया है दबंग का लोहा। ये भी मान लिया है कि वो दबंग के सामने विया फैमिली को ओवरशैडो नहीं होने देना चाहते। इसीलिए करण ने ढूंढ लिया है विया फैमिली को पब्लिसिटी देने के लिए एक नया टूल। ये टूल है कंट्रोवर्सीज का। शायद इसीलिए करण करीना कपूर और काजोल को लेकर ये शिकायत कर रहे हैं। I was hoping for many more fireworks off screen because I thought I'd get great PR energy out of it. That Kajol Kareena had a showdown. They fought over their wig, or they fought over the costume, or they fought over their lines, and they stormed off. Something happened. Nothing happened. They got along famously. In fact, they were really friendly. I was really upset. And I was really upset they didn't fight on set. It didn't give me a PR plug at all. Nothing. Upsetting. Shattering. That's the reason why you take 2 women in a film. You want them to fight. यही बात करण ने एक फिल्म मैगजीन के इस इवेंट पर भी कही। अपनी दोनों हीरोइंस के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होने पर अपना डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने Zoom से अपनी इस एक्सक्लूसिव बातचीत में भी दोहराया। Kajol Kareena at war on the sets of We Are Family. I wanted that ticker to flash dramatic things on news channels. Nothing happened. I wanted those Hindi news channels to go completely ballistic on, ज़्यादा गम, no खुशी on the sets of We Are Family. ऐसा कोई उनका होता है ना हेडलाइन. Nothing happened. लगता है करण के पास वी आर फैमिली के लिए बस क्रिएट करने का यही सहारा बचा है। कंट्रोवर्सीज और कंट्रोवर्सीज को कैरी करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर करण मजे से चटकारे भी ले रहे हैं। यकीन न आए तो खुद देख लीजिए वी आर फैमिली में काजोल की पोजीशनिंग से अजय देवगन के नाराज रहने की खबरों पर करण का ये रिएक्शन। Great. It was a great early morning article. I mean, more people read it and I hope more people go into the hall because of it. कंट्रोवर्सीज अगर खुद ब खुद आए तो और बात है, पर करण तो उन्हें खुद बुला रहे हैं। तभी तो यहाँ करण करीना के स्टाइल क्वेश्चन पर भी कुछ इस तरह चुटकी लेते नजर आए। It's an in-house internal joke between Kareena and me because I think she's most unstylish and she thinks I'm most unstylish. You all haven't seen her on her bad days. You've seen her when hair is done and makeup is right and the outfit has been coordinated effectively. I have been very privileged to see her and catch her on those bad days. आप सोच रहे होंगे कि करण कंट्रोवर्सीज को आ बैल मुझे मार कहकर क्यों इनवाइट कर रहे हैं, तो वजह भी साफ है। करण ये तो पहले ही मान चुके हैं कि दबंग के डर से उन्होंने वी आर फैमिली की रिलीज को प्रीपोन कर लिया है। उस पर काजोल भी फिल्म के प्रमोशंस में नहीं शामिल हो पा रही हैं। वह करण की काजोल और करीना को लड़ाने की चाहत उनकी फिल्म में जरूर पूरी हो ही गई होगी। एंड वी होप करण के साथ साथ ऑडियंस भी वी आर फैमिली में करीना और काजोल की ऑन स्क्रीन फाइट्स को काफी इंजॉय करेगी। बच्चों को संभालना कम आएगा तुम्हें। Oh, stop it. आसमान से माँ बनकर नहीं आई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। तुम जितना नहीं, मैं माँ नहीं हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता ना। आमिर और सलमान की दोस्ती कितनी गहरी है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के इन 2 सुपरस्टार्स के बीच खून का रिश्ता है? आमिर और सलमान के इस रिश्ते की खबर सुनकर चौंक गए ना आप? तो क्या है बॉलीवुड के टॉप 2 खान्स के बीच खून के रिश्ते का सच? हम कर रहे हैं इसका पोस्टमार्टम। कुछ कर गुजरने को खून चला। आमिर और सलमान, 2 दोस्त, 2 सुपरस्टार्स, मगर दोनों के बीच निकल आया खून का रिश्ता। कुछ कर गुजरने को चल पड़ा इनका खून। कुछ कर गुजरने को खून चला। आमिर और सलमान के इस रिश्ते का ये मतलब नहीं कि ये बायोलॉजिकली लिंक्ड हैं। ये रिश्ता जुड़ गया एक ब्लड डोनेशन कैंप में।
एक और जहां आमिर डोनेट कर रहे हैं अपना ब्लड, वहीं सलमान खान भी दे रहे हैं लहू की कुर्बानी। इंडिपेंडेंस डे के दिन सलमान ने इनिशिएटिव लिया है ब्लड डोनेशन कैंप को सपोर्ट करने का और खींच लाया आमिर को भी। ये टेक्स्ट आया सलमान का कि यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आना है अल्मेडा पार्क में, तो मैं आया और मैंने अपना ट्वीट भी किया सबको, बांद्रा में जितने लोग रहते हैं सब लोग आए यहाँ पर अपना खून दें। आमिर और सलमान दोनों ने एक साथ किया ब्लड डोनेट और ऐसा करने के बाद ये हो गए थोड़े फिल्मी। लोग दोनों लेटे हुए थे साइड में, मुझे लग रहा था अमर अकबर एंथनी का सीन चल रहा है। वेल, अमर और अकबर तो मिल गए, मगर शाहरुख आ जाते तो शायद वो एंथनी बन जाते। खैर जो भी हो, अब सलमान इंडस्ट्री के इस इडियट के साथ ब्लड डोनेट कर रहे थे और उन्हें भी खिताब मिल गया इडियट का। भाई किसकी इतनी हिम्मत जो सल्लू को इडियट कह गया। ये काम किया है डॉक्टर ने। डोनेशन के बाद सलमान को हिदायत थी एल्बो क्लोज कर ब्लड को रोकने की, मगर सलमान तो सलमान ठहरे, लगे ब्लड के साथ छेड़छाड़ करने। वैसे देखा जाए तो चैरिटी को लेकर सलमान वाकई इडियट हैं। हमेशा रहते हैं ये कॉजेस को सपोर्ट करने के लिए आगे। इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही आईफा में किया था ब्लड डोनेशन और 3 महीने तक ऐसा वो दोबारा नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी दे दी सलमान ने अपनी खून की कुर्बानी। आखिर क्यों? 3 महीने के अंदर ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अभी मैं मालदीव्स में डोनेट करके आया हूँ कुछ 20-22 दिन पहले। मैं सोचा कि मैं मालदीव में डोनेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर वापस भी कर सकता हूँ। सलमान की देखा देखी भाई अरबाज और दबंग की हीरोइन सोनाक्षी ने भी किया ब्लड डोनेट। बकायदा फॉर्म भरकर सोनाक्षी खून देने लेटी और उन्हीं के साथ साथ अरबाज ने भी किया रक्तदान। 350 ml दे चुकी हूँ, बट आई थिंक आई कैन गिव सम मोर क्योंकि आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं अपने दबंग प्रोड्यूसर के साथ ब्लड डोनेट करने आई हूँ, एकदम दबंग होकर ब्लड डोनेट किया है मैंने। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड शी इज फैंटास्टिक एंड शी बिलीव्स इन ऑल ऑफ दिस एंड यू नो दिस इज समथिंग शी इज सेटिंग एन एग्जांपल फॉर ऑल एवरीबॉडी। सलमान की फैमिली के अलावा इस नोबल कॉज में बॉलीवुड के और भी कई सेलिब्रिटीज का खून कुछ कर गुजरने को बेकरार था। अब सलमान ने बुलाया तो दोस्तों को तो आना ही था। रितेश देशमुख, अमीषा पटेल, दिया मिर्जा, दीनो मोरिया और शाहरुख की करीबी फराह भी आए सलमान के लिए। सलमान यहाँ हर सेलिब्रिटी को डोनेशन वैन तक अपने साथ लेकर आ रहे थे। देखिए कैसे डीनो को धक्का दे रहे हैं सलमान। वहीं भाई सोहेल रितेश को एस्कॉर्ट कर रहे हैं वैन तक। आजादी के दिन रखे गए इस ब्लड डोनेशन कैंप को बॉलीवुड ने जमकर सपोर्ट किया। दूसरों की जिंदगी में नए रंग भरने के लिए चल पड़ा सेलेब्स का ये खून मंजिल तो पाएगा ही, लेकिन बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार्स के बीच अब जुड़े खून के रिश्ते ने यकीनन दूसरे स्टार्स की राहें मुश्किल कर दी होंगी। कुछ कर गुजर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। खून चला। मुंबई में हुआ कल एक फैशन शो जिसकी रौनक बढ़ाने आ गई रैंप पर कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण। जी हाँ, बॉलीवुड के 2 आर्च राइवल्स एक ही रैंप पर। तो क्या ये एक दूसरे से मिली? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कैटरीना और दीपिका एक ही रैंप पर, दोनों चले दुल्हन के रूप में। एक का तो स्पेशल फ्रेंड था मौजूद, लेकिन दूसरे के स्पेशल फ्रेंड का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। IIJW ने कल मुंबई में रखा अपनी ज्वेलरीज को शोकेस करने के लिए एक फैशन शो, और इस फैशन शो के लिए कई सेलिब्रिटीज पहुंचे और कई रैंप पर उतरे। इन्हीं सेलिब्रिटीज में से थी दीपिका और कैटरीना, जिनका कैट फाइट से लेकर कैट वॉक का सफर कुछ यूं रहा। सबसे पहले बात दीपिका पादुकोण की। ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान के लिए रैंप पर उतरी दीपिका पादुकोण ने पहनी हुई थी ये गोल्डन साड़ी और गोल्ड और मरून ज्वेलरी। बेहद खूबसूरत दिखी रैंप पर चल रही ये दुल्हन। और जरा देखे तो इस दुल्हन को देखने कौन आया है। जी हाँ, दीपिका के बेहद करीबी दोस्तों में से एक सिद्धार्थ माल्या, जिन्होंने आते ही अपनी अफेयर की खबरों पर इंग्लिश एक्सेंट में कुछ यूं जवाब दिया। Soon to be followed दीपिका पादुकोण का भी आंसर। The rumor mills turn, don't they? The rumor mills don't cease to turn in this country. But I mean, what can you do? I mean, I'm not going to get into anything personal now, so let's stop it there. I don't think I'm ready to get married yet. And secondly, I think the fact that I've been a model earlier, I've done this before. But it's nice to be back on the ramp and to do something that I've always loved doing. तो लगता है कि बी टाउन के ये 2 नए फ्रेंड्स फिलहाल किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहते। दीपिका के क्लोज बडी ने जहां उनका साथ दिया, तो दीपिका के एक्स रणबीर की करीबी दोस्त कैटरीना कैफ को ना जाने कोई क्यों नहीं करने आया चियर। बेबी पिंक साड़ी में उतरी कैटरीना के चेहरे पर शायद इसीलिए नहीं दिखी चमक।
खैर छोड़िए, ब्राइडल ज्वेलरी को फ्लॉन्ट कर रही कटरीना से जब ये पूछा गया कि क्या 2012 में शादी करने का इरादा है पक्का, तो सुनिए कैट का जवाब। Definitely not. And yes, I said that. But you know, sometimes you say things and it's just a thought. I think now we're still 2010. So I have 2 more years. Let's see what happens in 2 years. I'll let you know. I'll keep you posted. If I do get married in 2012, you're definitely all invited. So I'll let you know. ये तो कुछ नहीं जनाब, कैट ने तो अपनी ज्वेलरी और शादी में ये कौन सा रंग पहनेंगी वो भी डिसाइड कर लिया है। Instinctively, the color which I kind of have in my mind is actually green. I don't know why, it's just it's the color which is in my mind. पर हमें भी रहेगा 2012 का इंतजार जब आप करेंगी उनसे निकाह। IIJW के डे 1 में इन हसीनाओं के अलावा और भी कई सेलिब्रिटीज दिखे, लाइक सयाली भगत एंड मॉम एंड डॉटर ईरा दुबे एंड लिलित दुबे। लेकिन फॉर श्योर जिन हसीनाओं ने बाजी मारी वो तो कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण ही थी, जिन्होंने ब्राइड बनकर रैंप पर ढाई कयामत। कीर्ति पंत के साथ राजप्रीत सोंध, ज़ूम, मुंबई। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कॉस्टलीस्ट फिल्म टिल डेट रोबोट स्टारिंग रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन का म्यूजिक लॉन्च हुआ मुंबई में, जहां फिल्म से रिलेटेड सभी डिग्निटरीज के साथ पहुंची पूरी बच्चन फैमिली इन सपोर्ट ऑफ बच्चन बहू ऐश्वर्या। लेकिन यहां हुए थोड़े कन्फेशंस तो थोड़े गूफ अप्स ने इस लॉन्च को बना दिया और भी मजेदार। कैसे? लेट्स चेक इट आउट। पागल अनुकन प्यार दो मैं कितने हैं। ये प्रोमोज देख अगर आप सोच रहे हैं कि ये किस फिल्म का ट्रेलर है और ऐश्वर्या राय बच्चन यहाँ किस हीरो को किस करती हुई नजर आ रही हैं, तो जरा ध्यान से देखिए इस एक्टर को। मुझे सना चाहिए। डॉट। I'm yours. रोबोटिक स्टंट्स करते हुए ये सुपर हीरो कोई और नहीं बल्कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत हैं, जिनका ये रोबोटिक अंदाज है ऐश्वर्या के ऑपोजिट उनकी अपकमिंग साई-फाई फिल्म रोबोट के लिए। 160 करोड़ के ह्यूज बजट के साथ बनी इस मच हाइप्ड फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हुआ मुंबई में, जहां पहुंची फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू इंक्लूडिंग द चीफ गेस्ट मिस्टर बच्चन। लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट तो लंबे वक्त के बाद मुंबई लौटे द रोबोट हिमसेल्फ रजनीकांत ने ही खींची विद हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, जब उन्होंने स्पोर्टिंगली शेयर किया अपना एक एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस विद अ फ्रेंड। ही केम एंड यू सा क्या रे रजनी, क्या बाल सब क्या हो गया यार, ऐसे पैर में झड़ गए यार, छोड़ो। हाँ क्या अभी क्या रिटायर्ड लाइफ, हाँ मजाक कर रहे हैं क्या? अभी एक पिक्चर काम कर रहा हूँ। अच्छा कौन सी पिक्चर? रोबो। अच्छा हाँ गुड। देन आई टोल्ड हिम ऐश्वर्या राय हीरोइन। अरे यार कमाल का लड़की यार, मैंने फैंटास्टिक। ऐश्वर्या राय हीरोइन। हाँ हीरो कौन? मैं हीरो। से तुम हीरो? बच्चे लोग साथ में आए थे। डैडी यस ही इज हीरो, डैडी ही इज हीरो। वेल वी गेस आपकी और हमारी तरह रजनी खुद भी हो गए हो सरप्राइज कि वो इस स्टेज में कैसे कर सकते हैं ऐसे रोल्स, वो भी ऐश्वर्या के ऑपोजिट। एनीवेज रजनी ने यहाँ अमित जी के साथ अपना दोस्ताना भी खूब शेयर किया। तभी तो अपनी फिल्म के साथ साथ संडे को 35 इयर्स कंप्लीट कर चुकी अमित जी की फिल्म शोले की भी तारीफ करना नहीं भूले रजनी। The picture is 150-160 crores, the biggest budget picture ever made. But only this won't make a big hit. Sholay, I'm telling you, Sholay is a historic mega hit, created history, not because of the money, because of the subject. बस भूल गए तो इस लेजेंडरी फिल्म में अपने खास दोस्त बिग बी के कैरेक्टर का नाम और शोले के जय को बता दिया विजय। गब्बर, वीर, विजय, बसंती, जिस पर बिग बी हो गए थोड़े से कॉन्शियस, बट ही चोज टू लेट गो द मोमेंट, क्योंकि जो भी हो रजनी हैज हिज ओन स्टेचर, जिसकी कायल खुद बच्चन बहू ऐश्वर्या भी हैं। तभी तो रजनी के यूनिक स्टेप्स देखने के लिए ऐश्वर्या को अपने स्टेप्स भूलना भी है मंजूर। There was one moment in a song when I was back to the camera, I have to say this, and Rajni sir did this moment and I was just like, I didn't do the react as meant to, because I said let it go to take 2. I have to just enjoy this moment. I just got to see it in person and it was great. It was just thoroughly enjoyable. वैसे रजनीकांत और ऐश्वर्या के अलावा एक और कैंडिड कन्फेशन किया म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान ने, जिन्होंने पोडियम पर आकर फिल्म की तारीफ तो खूब की, लेकिन जब बारी आई फिल्म का एक गाना सुनाने की तो रहमान भूल गए गाने के वर्डिंग्स। Actually, I want to sing the song of this movie, but I've forgotten the lyrics. I love you, na 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 na.
तो कुछ यूँ ये महा म्यूजिक लॉन्च रहा थोड़े कन्फेशंस और थोड़े गूफ अप्स के नाम, जिसमें एड ऑन था हबी अभिषेक का एक्सटेंडेड कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज वाइफ ऐश्वर्या, क्योंकि दरअसल अभिषेक को इसी शाम जाना था किसी और इवेंट पर चीफ गेस्ट बनकर, बट ही चोज टू कम टू दिस म्यूजिक लॉन्च जहां सॉरी टू से उन्हें नहीं मिला उतना फुटेज, बट वी गेस दैट्स द फोर्टे ऑफ बच्चन फैमिली टू सपोर्ट ईच अदर ऑन देयर ग्रैंड ओकेजन्स। आरती रानी के साथ सुरुचि महातपुरकर, ज़ूम, मुंबई। And now it's time for a very cool and crisp B News Express जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें इन अ रैपिड वर्जन। तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर। After the grand success of Peepli Live, Indian Ocean is back to rock again क्योंकि हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया अपना 6th एल्बम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी लिसनर्स उन्हें सुन सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। And we have decided to give it away completely free of cost to all our listeners and to many more people. Well, तो कुछ यूँ रहा 20 years old Indian Ocean के म्यूजिक लॉन्च का सेलिब्रेशन। किंग खान के फैंस के लिए हम लाए हैं एक और गुड न्यूज। 12 अगस्त को मैडम तुसाउथ में डिस्प्ले हुआ शाहरुख खान का ये नया वैक्स स्टैचू, और इन तस्वीरों से आपको पता ही चल गया होगा कि ये स्टैचू पिछले स्टैचू से ज्यादा रियल लग रहा है। इस मौके पर किंग खान नहीं आ पाए क्योंकि वो बिजी थे अपनी होम प्रोडक्शन में आने वाली फिल्म रावण की शूटिंग में, लेकिन द सेरेमनी वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड डांसर्स डांसिंग टू ऑल हिज पेपी नंबर्स। इस सेलिब्रेशन के साथ माय नेम इज खान के DVD का लॉन्च भी किया गया। सो श्योरली दिस वाज वन स्पेशल डे फॉर शाहरुख खान फैंस। Clean and Clear Delhi Times Fresh Face 2010 is back in your college, and this time it is bigger than ever before. It's a talent hunt amongst the best of colleges in Delhi, and 2 girls who win this contest will have a chance to become the new face of Clean and Clear. Log on to itimes.com to register. Auditions begin on August 16th and fame follows soon thereafter. So get ready to watch your friends become fans. In the various rounds and stages of the Fresh Face competition, one of the traits which separates the Clean and Clear girl from the rest, besides beautiful skin, is a self-confidence. So get set to check your confidence score with the confidence meter on itimes.com. For now, it's time for a break. Stay tuned. We'll be right back. Welcome back. Clean and Clear Delhi Times Fresh Face 2010 is back in your college, and this time it is bigger than ever before. It's a talent hunt amongst the best of colleges in Delhi, and 2 girls who win this contest will have a chance to become the new face of Clean and Clear. Log on to itimes.com to register. Auditions begin on August 16th and fame follows soon thereafter. So get ready to watch your friends become fans. In the various rounds and stages of the Fresh Face competition, one of the traits which separates the Clean and Clear girl from the rest, besides beautiful skin, is a self-confidence. So get set to check your confidence score with the confidence meter on itimes.com. But for now, Planet Bollywood mein itna hi. You can catch our show every day at 7 p.m. only on Zoom, 100% Bollywood.